کراچی سے خیبر تک کے احوال میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید اور سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ مظفر گڑھ میں تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے ماری۔ حادثے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اٹک کے نواحی گاؤں گلیال میں ایک ہی خاندان کے 3 بچے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ اہل علاقہ نے لاشیں نکال کر ورثاء کے حوالے کر دیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ریلوے ٹریک پر موجود بغیر پھاٹک کے 29 ریلوے کراسنگ موت کا سامان بن گئے۔ محکمانہ اقدامات کاغذی کارروائی سے آگے نہ بڑھ سکے۔ سیالکوٹ میں بس نہ روکنے پر ٹریفک وارڈن آگ بگولا ہو گیا۔ بس کنڈکٹر کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ کبیروالا میں انتظامیہ نے شہریوں کو آوارہ کتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ باولے کتے کے کاٹنے سے 2 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ مظفر گڑھ میں ظلم کی انتہا، قبضہ مافیا نے مکان پر قبضے کے لیے غریب خاندان پر دھاوا بول دیا۔ خواتین کے کپڑے پھاڑ دیے، گھر میں توڑ پھوڑ کے بعد آگ لگا دی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف کارروائی سے انکار کر دیا۔ خیرپور میں مسافر وین نے مویشیوں کے ریوڑ کو کچل دیا۔ وین کی ٹکر سے 60 سے زائد بکریاں، گائیں اور بھیڑیں ہلاک ہو گئیں۔ واقعے کے بعد وین ڈرائیور فرار ہو گیا۔ لاڑکانہ میں بھائی کے ہاتھوں قتل ہونے والے شخص کی بیوہ کو انصاف نہ ملا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ 1 ماہ گزر جانے پر بھی پولیس کی جانب سے کارروائی نہیں کی جا رہی۔ سوات میں سڑک کنارے نصب بم کے دھماکے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں ایک راہگیر بچہ بھی شامل ہے۔ پشاور میں پولیس اور فورسز کے سرچ آپریشن میں 14 افغان باشندوں سمیت 55 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سابق ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر بلدیہ میرپور بابر شہزاد کے لاپتہ بھتیجے کی لاش منگلا ڈیم سے برآمد۔ 12 سالہ بچہ ناراض ہو کر گھر سے گیا لیکن پھر لوٹ کر نہ سکا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے۔ مظفر گڑھ میں تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مظفر گڑھ میں ترکئی بائی پاس کے قریب تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال مظفر گڑھ منتقل کر دیا، جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ٹرالر کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے جائے حادثہ کا معائنہ کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اٹک کے نواحی گاؤں گلیال میں ایک ہی خاندان کے 3 بچے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ اٹک کے علاقے گلیال میں ایک ہی خاندان کے 3 بچے جن میں 14 سالہ ایمان، 8 سالہ سمن اور 6 سالہ علی حسن شامل ہیں، والدین کے ہمراہ چکوال سے اپنے آبائی گاؤں آئے ہوئے تھے۔ آج صبح تینوں بچے دیگر ہم عمر بچوں کے ہمراہ قریب ہی واقع ڈیم کے قریب کھیل رہے تھے کہ علی حسن پانی میں نہانے کی غرض سے ڈیم میں داخل ہو گیا۔ پانی گہرا ہونے کے باعث وہ ڈوبنے لگا، جسے بچانے کے لیے سمن اور ایمان نے بھی پانی میں چھلانگ لگا دی، تاہم تیراکی نہ آنے کے باعث تینوں بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ کنارے پر کھڑے دیگر بچوں کے شور مچانے پر اہل علاقہ بھی موقع پر پہنچ گئے اور لاشیں نکال کر ورثاء کے حوالے کر دیں۔
उधर गुजरांवाला में रेलवे ट्रैक अबूर करते हुए कम से लड़की ट्रेन की जद में आकर जा बहक हो गई। गुजरांवाला के इलाके शेरावाला बाग के करीब कम से लड़की रेलवे लाइन अबूर करते हुए लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन तले आकर जा बहक हो गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को शनाख्त के लिए DHQ मुंतकिल कर दिया, ताहम ताहाल इसकी शनाख्त नहीं हो सकी। कुछ लोग इसे खुदकुशी भी करार दे रहे हैं, ताहम पुलिस के मुताबिक अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। फाटक के 29 रेलवे क्रॉसिंग मौत का सामान बन गए हैं। रमा बरस के दौरान 7 हादसात में 11 अफराद लुकमा अजल बन गए, जबकि महकमाना इक़दामात कागजी कार्रवाई से आगे नहीं बढ़ सके। मजीद जानेंगे सुल्तान महमूद की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग जिला की रेवेन्यू हदूद में वाक़या 29 खुले रेलवे क्रॉसिंग हादसा का सबब बनने लगे। रवा बरस 7 हादसात में मजमूई तौर पर 11 अफराद लुकमा अजल बन गए। फाटक ना होने की वजह से बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि यहाँ पे फाटक लगवाए जाएं। रेलवे ज़राए के मुताबिक जिला टोबा टेक्सिंग की रेवेन्यू हदूद में सिर्फ 13 फाटक मंजूर शुदा हैं, जहाँ रेलवे मुलाजमीन तैनात हैं, जबकि बाकी तमाम क्रॉसिंग गैर कानूनी हैं। आए रोज होने वाले संगीन हादसात के बावजूद रेलवे हुकाम ने आज तक मज़कूरा क्रॉसिंग खत्म नहीं किए और न ही इन पर फाटक लगाने के लिए किसी किस्म के अमली इक़दामत किए गए। हर हादसे के बाद मुकामी इंतजामिया खुले फाटकों की तफसीलात आला हुकाम को भिजवा कर फर्ज पूरा कर देती है। इस जगह ते 2-3 बकूए बड़े ज्यादा बच्चे जवान के बहुत फौत होया, खोतड़ी नुकसान होया। इत्थे असीं चाहते हैं कि फाटक लगना जरूरी है। शहरियों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि खुले रेलवे क्रॉसिंग पर फाटकों की तनसीब के लिए फौरी इक़दामत किए जाएं। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। उधर सियालकोट में बस ना रोकने और तल्ख कलामी पर ट्रैफिक वार्डन्स ने कंडक्टर को भरे चौक में तशद्दुद का निशाना बना दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन ने सियालकोट से किंगरा जाने वाली मुसाफिर बस को रुकने का इशारा किया, ताहम बस नहीं रोकने पर उसने शेख मौला तालाब चौक के करीब रोक लिया। इस दौरान चालान के तनाज़े पर बस कंडक्टर और ट्रैफिक वार्डन शुएब चीमा के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिस पर वार्डन ने अपने दीगर साथियों के हमरा कंडक्टर खालिद को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना दिया। अहले इलाका की मुदाखलत के बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया, ताहम रेस्क्यू एहलकारों ने कंडक्टर खालिद को जख्मी हालत में अल्लामा इकबाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसे तिबी इमदाद दी जा रही है। दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डन शुएब चीमा के मुताबिक बस को कब्जे में लेकर थाना रिंगपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बहावलपुर खानका शरीफ में खानदानी झगड़े पर मुखालिफिन ने कुल्हाड़ियों के वार करके एक शख्स को जख्मी कर दिया, जिसे इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहावलपुर के करीब खानका शरीफ में 2 खानदानों में किसी बात पर झगड़ा हुआ। गुज़िश्ता रोज मुखालिफिन ने सादिक नामी शख्स को अकेला देखकर उस पर हमला कर दिया और कुल्हाड़ियों के वार करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे तिबी इमदाद दी जा रही है। ताहाल इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। दूसरी जानिब लवाहिकीन का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ताहम मामूली तनाज़े पर झगड़ा तूल पकड़ गया और लड़ाई हो गई। गरीब खानदान पर धावा बोल दिया, खवातीन के कपड़े फाड़ दिए, जबकि घर में तोड़ फोड़ करके आग लगा दी। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से भी इनकार कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ में जुल्म की एक और दास्तान रकम हुई। थाना सदर की हुदूद दीनपुर में कब्जा माफिया ने अचानक गरीब खानदान पर धावा बोल दिया। घर में मौजूद ख्वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और घर में मौजूद सामान की तोड़ फोड़ की। कब्जा माफिया ने तोड़ फोड़ के बाद घर में आग लगा दी। मुल्जिमान जाते जाते 10 साला बच्चे को भी अगवा करके साथ ले गए। मुतासरा खानदान थाने पहुंचा तो पुलिस ने बात सुनने से ही इनकार कर दिया। मुतासरा खानदान का कहना है कि पुलिस बासर कब्जा माफिया के साथ मिली हुई है। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। मुजफ्फरगढ़ में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ शहरी मुर्गा बनकर एहतजाज करते रहे। मुजफ्फरगढ़ में बाबडा सब डिवीजन गुजरात की तरफ से कस्बा गरबानी समेत दीगर इलाकों में बगैर रीडिंग और ओवर बिलिंग पर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया।
एहतजाज में शामिल शहरियों ने कोटद्दू रोड को ब्लॉक कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरे में शामिल कई शहरी मुर्गा बनकर एहतजाज करते हुए नजर आए। मुजाहिरीन की जानिब से वापडा एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वापडा सब डिवीजन कस्बा गुजरात के एसडीओ और अमला बिजली चोरों को तहफ्फुज देने के लिए सार्फिन को भारी बिल भिजवा रहे हैं। गुजरावाला की यूनियन काउंसिल निडाला सिंधु से मुंतखब होने वाले जनरल काउंसिलर लियाकत अली इख्तियारात न मिलने पर एहतजाजन बिजली के पोल पर चढ़ गए। बड़ी तादाद में शहरी मौके पर जमा होकर जनरल काउंसिलर को नीचे उतारने के लिए मिन्नत समाजत करते रहे। गुजरावाला में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जनरल काउंसिलर मुंतखब होने वाले लियाकत अली इख्तियारात न मिलने पर एहतजाज करते हुए बिजली के खंबे पर चढ़ गए। इलाके के लोग बड़ी तादाद में मौके पर जमा हो गए और जनरल काउंसिलर को खंबे से नीचे उतारने के लिए मिन्नत समाजत करते रहे। जनरल काउंसिलर लियाकत अली का कहना था कि वो बल्दियाती इलेक्शन में आवाम से किए गए वादे इख्तियारात न मिलने के बाइस पूरे नहीं कर सके। वोटर्स के काम न होने पर उनकी सियासी साख मुतासिर हो रही है। इसी वजह से वो खुदकुशी करने के लिए पोल पर चढ़ गए थे। डेरा गाजी खान में इंतजामिया की गफलत से शहरी खामोशा को भी नहीं बचा सका। कब्रिस्तान जौहड़ का मंजर पेश कर रहा है। डेरा गाजी खान के इलाके गदाई में सीवरेज के इंतहाई नाकिस इंतजाम के बाइस शहरियों की जिंदगियां अजीरन बन चुकी हैं। नशेबी इलाका होने के बाइस गटरों का गंदा पानी कब्रिस्तान में जमा हो गया। कब्रों के एतराफ में खड़ा पानी किसी जौहड़ का मंजर पेश कर रहा है। अपने प्यारों की कब्रों को गटर के गंदे पानी में डूबा देखकर शहरी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। आवामी और समाजी हलकों ने मुतालिबा किया कि वज़ीर आला पंजाब सीवरेज के नाकिस इंतजामात का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अमल में लाएं। मुल्तान के करीब मखदूम रशीद कैनाल में 30 फीट गहरा शिगाफ पड़ने से कई आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं। इंतजामिया की बेहिसी की वजह से मुतासरीन बेसरोसमानी के आलम में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जानेंगे एजाज तरीन से। एजाज तरीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी, इस वक्त हम मौजा बंगलवाला में मौजूद हैं, जहाँ गुज़श्ता रोज़ मखदूम रशीद कैनाल में 30 फुट से ज़्यादा जो है शगाफ पड़ा था, जिससे कई आबादियाँ ज़ेरे आब आ गई और कई मकान ज़मीन बोस हुए। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, इस वक्त कई मकान जो है वो ज़मीन बोस हो चुके हैं और मकान ज़मीन बोस होने से जो मकीन है वो नहर पर मौजूद है। मखदूम रशीद कैनाल के किनारे पर बैठे हुए हैं बेयारों मददगार। अभी तक उनकी मदद के लिए ना ही कोई MNA आया है, ना ही कोई हुकूमती MP आया और ना ही कोई सरकारी एहलकार आए हैं। यहाँ मकीनों का कहना है कि पानी में उनकी गंदम भी बह गई है, भूसा भी बह गया और उनका ये कहना है कि उनके जानवर अभी तक भूखे हैं और वो खुद भी अभी तक खाना नहीं बना सके। अगर इस तरफ फयाज कैमरामैन दिखा सके जहाँ पर पानी खड़ा है फसलों में और ज़ेरे आब इलाका आ गया है, फसलें भी तबाह हो गई हैं और आमों के बागों को भी ख़ास तौर पर नुकसान पहुंचा है। मकीन जिनके मकान ज़मीन बोस हुए हैं वो अभी तक बेयारों मददगार हैं। हुकूमत की तरफ से जो ऐलानात किए जाते थे वो अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इनकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा और ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान की तरफ से जो मानसून की बारिशों के निपटने के लिए इकदाम के जो दावे किए गए थे वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। अभी तो पहली मानसून की बारिश है जिससे मखदूम रशीद कैनाल में 30 फुट गहरा शगाफ पड़ गया है और कई एकड़ ज़मीन ज़ेरे आब आ गई और फसलों को नुकसान पहुँचा है। इस वक्त हमारे साथ मलिक मोहम्मद सलीम मौजूद हैं जो नवाए वक्त के यहाँ कादिरपुर नामा निगार हैं। आइए इनसे पूछते हैं। मलिक साहब, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल सर ये है कि ये नहर है मखदूम रशीद, इसमें 30 फुट शगाफ पड़ा है जिसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान है। 6 किलोमीटर तक पानी हम सारी फसलों को चीरता हुआ नहर के किनारे जा लगा है, जिसकी वजह से ये सारे लोगों का नुकसान हो गया है और लोग बेयावर मददगार बैठे हुए हैं। कोई आदमी भी इनकी मदद के लिए नहीं आया। मसला ये है जी आपने सुना मलिक मोहम्मद सलीम का कहना था कि 6 किलोमीटर से ज़्यादा इलाका जो है वो ज़ेरे आब आ गया है और अभी तक
कोई इनकी मदद को नहीं पहुंचा। छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, खवातीन जो हैं वो नहर पर बैठी हैं, सर छुपाने के लिए जगह नहीं। और मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले मानसून की बारिशें जो है कैनाल में शिगाफ पड़ने से मुतासरीन बेयारो मदद और जिले इंतजामिया उनकी मदद को नहीं पहुंची है। एजाज तरीन मुल्तान से आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। फैसलाबाद में अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। अरकान असम्बली और जिले इंतजामिया के अफसरान समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाबाए खिदमत और अजीम समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अरकान कौमी सूबाई असम्बली और जिला इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम की गिरां कदर खिदमात को खूबसूरत अल्फाज में सराहा गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि अब्दुल सत्तार ईदी ने पूरी जिंदगी सादगी से गुजारी। वो हमेशा दूसरों का दुख दर्द बांटते रहे और खिदमत खलक को ही अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। उनका मजीद कहना था कि हर शख्स को चाहिए कि अब्दुल सत्तार ईदी जैसी सोच अपनाए और दूसरों के दुखों पर मरहम रखे। रब को राजी करने का एक जरिया मखलूक की खिदमत भी है। आखिर में मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए खसूसी दुआ भी की गई। खादिम इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी के इसाले सवाब के लिए बिहाड़ी में तहरीक इंसाफ के ज़ेर तमाम दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। पंजाब भर की तरह बिहाड़ी में भी खादिम इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी की रूह के इसाले सवाब के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़रई दफ्तर में कुरान खानी की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िले भर से दर्जनों कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल सत्तार ईदी की जिंदगी पर मुफस्सल रोशनी डाली गई और उनकी खिदमत को सराहा गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि अब्दुल सत्तार ईदी मोहसिन इंसानियत थे और उनका खला रहती दुनिया तक पुर नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब करे। उधर मुल्तान हाईकोर्ट बार में मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई और उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का भी इनेकाद किया गया। मुल्तान हाईकोर्ट बार में मुनाकिदा तकरीब में वकला और अवाम ने शिरकत की। इससे कबल अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। तकरीब से खिताब करते हुए वकला का कहना था कि अब्दुल सत्तार ईदी ने रुपए पैसे को ठोकर मारकर इंसानियत की खिदमत को अपना शुआर बनाया। ईदी साहब पूरी दुनिया और दुखी इंसानियत के गम बांटते रहे, अपनी आंखें भी दूसरों को अतिया कर गए। तकरीब के इख्तिताम पर मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की गई। 67 लाख एकड़ रकबे पर मुहित रेत का दरिया सहराए चोलिस्तान, जहां के मकीन आज के जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, उनकी आंखें किसी मसीहा के मुंतजिर हैं जो उनकी दादरसी कर सके। रिपोर्ट देखिए चौधरी मुर्तजा की। चोलिस्तान 66,55,360 एकड़ पर मुश्तमिल लकोदक सहरा, जिसे आज चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। बहावलपुर डिवीजन का ये इलाका अजल से बेआबो बेआबान न था, बल्कि तारीख शाहिद है कि ये खित्ता अर्ज एक अजीम तहजीब का अमीन रह चुका है, जिसे हाकड़ा का नाम दिया जाता है, जो दरिया घाघरा के किनारों पर आबाद था, जिसके आसार अजीमो शान किलों और आलीशान शहरों की बाकियात की शक्ल में इस सहरा में जां बजां फैले हुए हैं। चोलिस्तान की इंसानी आबादी 1.5 लाख महफूज पर मुश्तमिल है, जिनकी गुज़र-औक़ात मुकम्मल तौर पर लाइफ स्टॉक पर मुश्तमिल है, जिसमें गाय, भेड़, बकरी और ऊंट शामिल हैं। इंसानी और हैवानी जिंदगी के लिए हालात इंतहाई नामुसाइब हैं। पानी की कमी की एक वजह सालाना औसतन बारिश 2 से 3 इंच है। इंसानों और जानवरों को पानी की तलाश में रोजाना मीलों का सफर करना पड़ता है। पानी के हसूल का वाहिद जरिया बारिश है, जिसका पानी टोबों में जमा कर दिया जाता है और पूरा साल इसी पर इन्हिसार करना पड़ता है। चोलिस्तान में 1100 के करीब टोबा जात हैं, जहाँ पर आज 21वीं सदी के दौर में भी इंसान और जानवर एक साथ पानी पीते हैं। 66 लाख एकड़ पर मुहित सहरा चोलिस्तान आज भी किसी मसीहा का मुंतजिर है, जो यहाँ के बासी चोलिस्तानियों को साफ पानी और जिंदगी की बुनियादी जरूरियात की फराहमी को मुमकिन बना सके। चौधरी मुर्तजा, वक्त न्यूज, बहावलपुर। और नाज़रीन, नमक की कानों के बाइस दुनिया भर में मशहूर ख्योड़ा अपनी मिसाल आप है। इस अजूबे को देखने के लिए अंदरूनी मुल्क के अलावा बैरूनी मुल्क से भी सयाह बड़ी तादाद में आते हैं।
मीटर बुलंदी पर वाक़ ख्योड़ा शहर पहाड़ी इलाका होने के बावजूद अलग पहचान रखता है, जिसकी कशिश सयाहों को अपनी जानिब खींच लेती है। नमक की इस कान की 17 मंजिलों में से 6 सियाहत का शौक रखने वालों के ज़ौक़ की तस्कीन करती नजर आती हैं। नमक की ईंटों से बनी मस्जिद, डाकखाना, नमक से बना मीनारे पाकिस्तान का मॉडल और अंगूरी बाग का शहर ऐसा कि देखने वाला महसूर हुए बगैर ना रह सके। कान में चलती रेलगाड़ी की सैर किए बगैर भी मजा अधूरा ही रहता है। यहाँ के हर मौसम में 18 सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत भी ऐसा कि स्याह खींचे चले आए। की बजाय शोहरत नमक की कानें हैं, जिसकी दरियाफ्त राजा पोरस और सिकंदर आजम के दरमियान इसी मुकाम पर मार्के के दौरान हुई, जब जंग के दौरान सिकंदर आजम के घोड़ों ने ख्योड़ा की पहाड़ियों को चाटना शुरू किया तो यहाँ पर नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। मंडी शाहजीना में सालाना कबड्डी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। एक बाजू से महरूम खिलाड़ी ने शानदार खेल पेश करके भरपूर दाद वसूल की। मंडी शाहजीना के नवाही इलाके में हर साल ईद उल फितर के बाद खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है। मुकाबलों में कबड्डी को खास अहमियत हासिल होती है। इन मुकाबलों में कस्बों और दूर दराज से आए खिलाड़ी अपने जौहर दिखाते हैं। कबड्डी का मुकाबला शायकीन के लिए उस वक्त इंतहाई दिलचस्प हो गया जब एक बाजू से महरूम खिलाड़ी ने खूब दाव पेच दिखाते हुए शानदार खेल पेश किया। नवाही इलाकों के सैकड़ों शायकीन भी बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं। कबड्डी के शानदार मुकाबले में खिलाड़ियों ने अपनी अपनी मुहारत का भरपूर मुजाहरा किया। नौजवानों का कहना है कि देहातों में रहने वाले खिलाड़ी किसी तौर पर भी शहरी खिलाड़ियों से कम नहीं, लेकिन यहाँ ग्राउंड न होने के बायस मुश्किलात दरपेश हैं। खिलाड़ियों और शायकीन ने वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ समेत अरबाब इख्तियार से मुतालिबा किया कि ग्राउंड मुहैया किया जाए ताकि खेलों की सरगर्मियां फरोग पा सकें। ननकाना साहब में मारूफ रूहानी बुजुर्ग बाबा मौज दरिया के सालाना उर्स मुबारक की 3 रोजा तकरीबात शुरू हो गयी। घोड़ों ने खूबसूरत और दीदा जेब रक्स करके समा बांध दिया। ननकाना साहब में मारूफ रूहानी बुजुर्ग बाबा मौज दरिया के उर्स मुबारक की तकरीबात में मुल्क भर से हजारों अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। पहले रोज कीमती और खूबसूरत घोड़ों के माबैन डांस मुकाबले का इनेकाद किया गया। घोड़ों ने ढोल और शहनाई पर पंजाब का रिवायती रक्स पेश करके हाजिरीन के दिल मोह लिए और उनसे खूब दाद वसूल की। उर्स मुबारक की तकरीबात में शरीक अकीदतमंदों के अलावा सैकड़ों अफराद ने घोड़ा डांस का मुकाबला देखा। शहरियों का कहना था कि इस तरह के मुकाबलों से न सिर्फ पंजाब की रिवायती सकाफत की अक्कासी होती है बल्कि लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत को भी फरोग मिलता है। उन्होंने कहा कि औलिया कराम ने सारी जिंदगी प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का दर्ज दिया। उनके उर्स मुबारक की तकरीबात में भी इसी पैगाम को आम करने की कोशिश की जाती है। बादजा मुकाबले में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले घोड़ा मालिकान में इनामात भी तकसीम किए गए। और अब खबरें होंगी सुबह सिंध से। कंदकोट में नहर में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से 20 से जायद गांव ज़ेरे आबा के। शिगाफ के बायस सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। कंदकोट में शाही किनाल में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके बायस नहर के करीब वाक़े 20 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए। बर वक्त इमदादी सरगर्मियां न होने पर सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गयी। मुतासरीन के मुताबिक महकमा आपाशी के अमले को शगाफ पड़ते ही इत्तला कर दी गयी थी। महकमा आपाशी ने रवायती सुस्ती का मुजाहरा किया, जिससे उनका लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। मुतासरीन अपनी मदद आब के तहत शगाफ को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारी मशीनरी न होने से देहातियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाही केनाल के पुश्ते मजबूत न करने पर मुतासरीन ने महकमा आपाशी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया और हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालिबा किया।
उधर खैरपुर में मुसाफिर वैन ने मवेशियों के रेवड़ को कुचल दिया। वैन की टक्कर से 60 से ज्यादा बकरियां, गाय और भेड़ें हलाक हो गईं। वाक़े के बाद वैन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खैरपुर में रानीपुर के करीब पेश आने वाले हादसे में मुसाफिर वैन ने भेड़ों, बकरियों और गाय के रेवड़ को कुचल दिया। वैन की टक्कर से 60 से ज्यादा भेड़ें, बकरियां और गाय हलाक हो गईं। पुलिस के मुताबिक वैन कराची से सियालकोट जा रही थी। दूसरी जानिब हादसे के बाद बकरियों का मालिक सरापा एहतजाज बन गया। बकरियों के मालिक ने इल्जाम आयद किया कि वैन ड्राइवर की गफलत के बाइस इसकी लाखों रुपए की बकरियां हलाक हो चुकी हैं। हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। हादसे के बाद वैन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बाबाए खिदमत इंसानियत के मसीहा मोहतरम अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बुलंदी दर्जात के लिए हैदराबाद में कुरान खानी का एहतमाम किया गया और खुसूसी दुआएं की गईं। मारूफ समाजी कारकुन और गरीबों की हर दिल अजीज शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी ने तवील अलालत के बाद मट्टी की चादर ओढ़ ली। करोड़ों अफराद को रोता छोड़कर जाने वाले ईदी साहब हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। हैदराबाद के ईदी हाउस में इनकी बुलंदी दर्जात के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर फातिह खानी की गई और खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर इनके चाहने वालों का कहना था कि ईदी साहब ने सारी जिंदगी दूसरों को दिया, लेकिन खुद किसी से कुछ नहीं लिया। इनका कहना था कि वो ऐसे अजीम इंसान थे कि जाते जाते भी अपनी आंखें भी अतिया कर गए। कारकुनों का कहना था कि ये खला कभी पुर नहीं होगा, क्योंकि इंसानियत की खिदमत करना एक मिशन है। इस मौके पर खवातीन का कहना था कि ईदी साहब अजीम थे। कई बहनों की शादियां करवाई, यतीमों के सरों पर हाथ रखे और हमेशा दूसरों का दुख दर्द बांटते रहे। आखिर में अब्दुल सत्तार ईदी साहब को इनकी गिराकदर खिदमत पर खिराज अकीदत पेश किया गया। और नाज़रीन, अब्दुल सत्तार ईदी एक सोच और एक फिक्र का नाम। उनकी पूरी जिंदगी इंसानियत के दुख और दर्द बांटते गुजर गई। उनके इंतकाल पर हर आंख पुरनम और हर दिल अफसुर्दा है। जैकबाबाद के शहरियों ने ईदी साहब को खराज अकीदत पेश किया। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। ये वो अजीम हस्ती थे जो यतीमों के वाली थे, जो गरीबों के खैर ख्वाह थे। अब्दुल सत्तार ईदी साहब की शख्सियत के बारे में मैं क्या कहूँ। उन्होंने एक ऐसा अच्छे काम का आगाज़ किया, अपनी सादी ज़िंदगी बसर कर कर यतीमों, बेवाओं और मासूम बच्चों की खिदमत की। पाकिस्तान आज जो है हकीकी माने में यतीम हो गया है। ऐसे इंसानों की हमारे मुल्क में बहुत कमी है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और ऐसे जो बंदे हैं उसमें कसरत पैदा फरमाए। यकीनन अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। टंडवाला यार्ड में गरीबों के हमदर्द रहबर, गुरबा और मसाकीन अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। टंडवाला में SSP ऑफिस में कुरान खानी का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मदारिस के बच्चों, उलमाए कराम और पुलिस एहलकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ भी करवाई गई। शुरका का कहना था कि अब्दुल सत्तार ईदी एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। उन्होंने लाखों बेसहारा बच्चों को सहारा दिया। उनका कहना था कि उनके इंतकाल पर जहां पूरी दुनिया सोग में डूबी हुई है, वहीं लाखों बच्चे भी यतीम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब्दुल सत्तार ईदी गरीबों और बेसहारा अफराद की मदद के लिए सड़कों पर भीख मांगकर ये साबित कर चुके हैं कि जो लोग मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं वो लोग हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। लाड़काना के गांव हसन जतोई में एक माह पहले भाई के हाथों कत्ल होने वाले मकतूल मुश्ताक अहमद की बेवा ने इंसाफ के हुसूल के लिए बच्चों के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस की। लाड़काना प्रेस क्लब में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए मकतूल मुश्ताक अहमद जतोई की बेवा नजमा जतोई का कहना है कि एक माह कबल उसके देवर मुर्तजा जतोई ने अपने साथी रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसके शौहर को जमीन के तनाजे पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। खातून ने बताया कि कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, लेकिन एक माह गुजरने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी जानिब उसका देवर उसे मुकदमे से दस्तबरदार न होने पर कत्ल की धमकियां दे रहा है। मुतासिरा खानदान का कहना है कि आला हुकाम नोटिस लें और कातिल को गिरफ्तार करके उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाए।
अवामी नेशनल पार्टी टंडुआला यार की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब टंडुआला यार की नौमुंतखब बॉडी को अजरक और हार पहनाने के तहफ़ दिए गए। अवामी नेशनल पार्टी टंडुआला यार की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब टंडुआला यार की नौमुंतखब बॉडी को अजरक और हार के तहफ़ पेश करने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब से अवामी नेशनल पार्टी के ज़िले सदर मीर बाज खान उर्फ बादशाह खान ने नेशनल प्रेस क्लब टंडुआला यार के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान को मुबारकबाद भी पेश की। और अब खबरें होंगी खैबर पख्तूनख्वा से। सवात में सड़क किनारे नस्ब बम के धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में एक राहगीर बच्चा भी शामिल है। सवात के इलाके मंकियाल में बम धमाके से 2 पुलिस एहलकार और एक राहगीर बच्चा जख्मी हो गया। धमाके के फौरी बाद रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। धमाके के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पेशावर में पुलिस और फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन में 14 अफगान बाशिंदों समेत 55 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और फोर्सेस का दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पेशावर के इलाके हयाताबाद में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 14 अफगान बाशिंदों समेत 55 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए अफराद को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। कुरम एजेंसी के सदर मकाम पाराचनार में सिखों की 3 रोजा मजहबी तकरीबात इख्तिताम पसीर हो गईं। मुल्क भर से सिख बरादरी ने शिरकत की और सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को भी सराहा। कुरम एजेंसी के इलाके इब्राहिम जई में सिख बरादरी की 3 रोजा दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीबात कबायली इलाकों के वाहिद सदियों पुराने गुरुद्वारा में मुनाकिद हुई। तकरीबात में मुल्क कौम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर सिख रहनुमाओं का कहना था कि हर साल ये तकरीबात मुनाकिद की जाती हैं। इंतजामिया ने बेहतरीन सहूलियात फराहम की, जिसके लिए कुरम एजेंसी पॉलिटिकल इंतजामिया और हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। इस मौके पर सेनेटर सज्जाद हुसैन और असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट लॉयर कुरम नसरुल्लाह का कहना था कि अकलियती बरादरी के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। हमेशा कोशिश रही है कि इन्हें बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। हम इसको अपने भाई समझते हैं कि हमारे इलाके में अमन के लिए हम कोशिश करें कि इलाके में पूरी इलाके में एक अमन की फिज़ा कायम हो और भाईचारा कायम हो, ताकि कोई चीज़ सिर्फ इंसानियत पे होनी चाहिए। किसी मजहबी या फिरकावाराना या इस तरह चीज़ों पे हम अमन नहीं ला सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं पॉलिटिकल इंतज़ामिया सनद साहब का, कि यहाँ पे जो चीज़ों का हमने इनसे डिमांड किया था वो सारी सिक्योरिटी वगैरह और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो इन्होंने हमें दी है। मुकामी कबाइल का कहना था कि वो अकलियती बरादरी के साथ भरपूर ताउन करते हैं और सबकी तरह इन्हें भी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इनका मजीद कहना था कि सिख बरादरी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा नासिर खान दुरानी का कहना है कि 3 साल से सूबे की पुलिस पर कोई दबाव नहीं, पुलिस अपना काम भरपूर अंदाज में कर रही है। हंगू अहमद पर पुलिस लाइन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आईजी केपी ने कहा कि सूबे की पुलिस की नाकामी का दावा करने वाले 3 साल कारकर्दगी को भी देख लें। उन्होंने कहा कि सूबे में जराइम बड़ी हद तक कम हो चुके हैं और अमन अमान कायम हो रहा है। उनका कहना था कि कबायली इलाकों के नजदीकी इजला हंगू, कोहाट और दीगर इजला में जराइम में काफी हद तक कमी आई है और हालात कदरे बेहतर हैं। नासिर खान दुरानी ने आवाम से अपील की है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासर कभी नहीं चाहेंगे कि अमन का दौरा हो, इसलिए वो कशीदगी फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें अवाम की मदद से नाकाम बना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए तकरीबन मुझे इस सूबे में सर्व करते हुए। अभी किसी किस्म का चूँकि कोई सियासी कोई गैर सियासी हमारे ऊपर ना कोई प्रेशर है, ना ये पुलिस फोर्स प्रेशर लेती है। अब जिसकी वजह से ये पुलिस सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है। और जिस तरह अभी आपने कहा कि पुलिस की कामयाबी जो है वो अवाम के ताउन में है। और अब खबरें होंगी सुबह बलोचिस्तान से।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मीर औरंगजेब खान जमाली का कहना है कि अफगान मुहाजिरीन ने उनके सूबे को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। खानगढ़ जमाली में सहाफियों से बातचीत करते हुए पीटीआई के मरकजी रहनुमा मीर औरंगजेब खान जमाली ने कहा कि बलोचिस्तान के हालात में अगर कुछ बेहतरी आई तो वो फ्रंटियर कोर की वजह से आई है और अब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के दौर में हालात खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क और सूबे के बॉर्डर मजबूत नहीं हैं, गैर कानूनी असलहा और गाड़ियां बड़ी तादाद में आई हैं। उनका कहना था कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जरूर चलाएंगे। पीटीआई के रहनुमा का कहना था कि जाफराबाद में करप्शन उरूज पर है। डेरा लायार में एमपीए फंड सिर्फ जाती मुफाद और मनपसंद अफराद पर खर्च कर रहे हैं, जबकि कागजी कार्रवाई में तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए गए हैं। और अब खबरें होंगी आजाद कश्मीर से। साबिक डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मीरपुर बाबर शहजाद के लापता भतीजे की लाश मंगला डैम से मिल गई है। 12 साला बच्चा नाराज होकर घर से चला गया था। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मीरपुर आजाद कश्मीर में मंगला डैम से 12 साला लड़के की लाश बरामद हुई, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मंगला डैम से मिलने वाली लाश साबिक डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मीरपुर आजाद कश्मीर बाबर शहजाद के भतीजे की है, जो कई रोज से लापता था। पुलिस जराये का कहना है कि 12 साला लड़का वालिदा की डांट से नाराज होकर घर से चला गया था, जिसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को कर दी गई थी। कराची से खबर तक का अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।